Hello everyone, myself Samarth Singh again in front of you people in order to bring out the next video in our economic series that is a wonderful initiative of Udan IS. Acha. To be more specific, in the last of the class we majorly had discussed regarding our all the development banks were done. Development banks were done and we had a discussion, a small discussion on the local area banks. Okay, so this much we had done. So if I'm saying that we have completed a majority of the section of your banking sector, है ना? So now it is the time to move our discussion towards what, that is the institutions that are not I will be saying that are not banks as such, but they are able to carry out the operation very similar to the banks. ठीक है, कुछ कुछ काफी सिमिलर होता है बैंक्स के, बट येस दे आर नॉट बैंक्स. ठीक है, and similar kind of the institutions, if I'm saying that are not banks but are kya very much into blending and all those kind of similar financial activities mein they are very much involved. I am calling those of the banks I'm calling those of the institutions, take those of the institutions as what, that is non banking financial companies. ठीक है, so I'm talking about what, that is NBFC, non banking financial companies, non banking financial companies. That is we are going to discuss in today's class. Now see, if I'm talking about these NBFCs के ऊपर अगर मैं क्या थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ, so what I'm trying to say is that I am saying that is these NBFCs, ठीक है, ठीक है, what are these? Firstly, let me explain you that is these NBFCs is a company which is engaged in the businesses of the loans and the advances, ठीक है, acquisition, selling of the shares, bonds, debentures, leasing, insurance, chit funds and all those kind of stuff. ठीक है, इसके ऊपर हम लोग क्या बात करेंगे आराम से, ठीक है, कि what are these क्या bonds, debentures है ना, we will be having a detailed discussion on it. But अभी के लिए आप क्या समझने के लिए समझ सकते हैं क्या कि भैया ये जितने भी मेरे इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, whatever these institutions are out there, they are carrying out these financial activities and it is not like कि these financial activities could only be done by the bank. ठीक है, so very similar to the bank but they are not banks. अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूं कि यार इसमें डिफरेंस क्या होता है एनबीएफसीज एंड बैंकिंग में, है ना, क्या क्या डिफरेंस ऐसा क्या होता है. ठीक, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक सेक्टर्स एज सच, ठीक है, अगर मैं बैंक सेक्टर्स की बात करता हूं, बैंक्स में यू कैन डिमांड, ठीक है, यू कैन आस्क, यू कैन हैव क्या, यू कैन हैव योर मनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, एंड दैट इज वाई बैंक्स को मैं बोलता हूं दैट दे आर कीपिंग व्हाट, दे आर कीपिंग योर demand deposits. They are keeping your demand deposits. What are these demand deposits? That they will be made available to you as soon as you demand. ठीक है, that is first of the case that you have to remember. अच्छा, then if I'm talking about इनके केस में मैं क्या बोलता हूँ, that is NBFCs के केस में क्या मैं बोलता हूँ, that is main difference is that NBFCs do not take demand deposits. So NBFCs, that is non-banking financial company, are not having demand deposits. That is first and the foremost thing that you have to learn. ठीक है, number first thing. अच्छा, दूसरा मैंने क्या बात बताया इसमें, ठीक है, इट इज हैविंग अ वेरी ब्रॉड कंसेप्ट एंड हैविंग अ वेराइटी ऑफ वेरिएशंस. ठीक है, सो दे माइट बी क्या इन्वॉल्व इन व्हाट, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, दे माइट बी इन्वॉल्व इन शेयर्स एंड ऑल दोस काइंड ऑफ स्टफ्स. ठीक है, बहुत सारी क्या प्रोबेबल जगह हैं जहाँ पे ये सारे क्या चीज़ें इन्वॉल्व रह सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट. Number third point is that in 2016, ठीक है, if I'm talking about government allowed 100% FDI. ठीक है, government allowed 100% FDI. ठीक है, 100% FDI उन्होंने किस में अलाउ किया है, NBFCs में. ठीक है, so if a foreign entity wants to क्या come and invest in these NBFCs, yes they can do that. So इससे मैं एक important conclusion निकालता हूँ that these NBFCs, ठीक है, को गवर्नमेंट का 100% ओनरशिप नहीं है. ठीक है, इसमें प्राइवेट ओनरशिप हो सकता है. पीपल कैन इन्वेस्ट इन दीज एनबीएफसीज. ठीक है, सो दैट इज यू हैव टू रिमेंबर. ठीक, नंबर फर्स्ट ऑफ द थिंग. अच्छा, ठीक, अच्छा, अगला मैंने क्या बात किया, दैट एनबीएफसीज फाइनेंशियल एसेट्स, दीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, इसके जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, इट शुड कंस्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ देयर
टोटल एसेट्स, ठीक है। अच्छा, जरूरी देखो फाइनेंशियल एसेट्स क्या होता है, दैट आर समवट रिलेटेड टू क्या, मनी, ठीक है। मनी से मतलब क्या, जिसमें पैसा आएगा, जैसे लैंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, लैंड विल नॉट बी क्या गिविंग यू एज सच क्या, इफ आई एम सेइंग नॉट बी गिविंग यू मनी इन अ क्विक सक्सेशन, आपको उसको बेचना पड़ेगा, है ना, ठीक। सो फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स आर दोस की मतलब जहां से क्या मेरा पैसा तुरंत जनरेट होता रहे, है ना, ठीक। सो इफ आई एम सेइंग दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में क्या है, ठीक, दैट इज फाइनेंशियल एसेट्स शुड कंस्टिट्यूट, ऐसे जो एसेट्स हैं इट शुड कंस्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ योर टोटल एसेट्स, ठीक, नंबर फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट पॉइंट, ठीक है। एंड द इनकम फ्रॉम द फाइनेंशियल एसेट शुड कंस्टिट्यूट क्या 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम, ठीक है। आपकी जितनी भी इनकम है, ठीक है, उसमें से 50%, तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले फाइनेंशियल एसेट्स आपके कितने होने चाहिए, 50% आपके फाइनेंशियल एसेट्स होने चाहिए, ठीक है। उन फाइनेंशियल एसेट से जो आपकी इनकम आएगी दैट शुड ऑल्सो कंस्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ योर ग्रॉस इनकम, ठीक है। फाइनेंशियल एसेट्स कुड बी देयर, नॉन फाइनेंशियल एसेट्स कुड ऑल्सो बी देयर, ठीक है, बट फाइनेंशियल एसेट्स का इनकम शुड बी मोर देन 50%, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ द इनकम शुड बी कमिंग फ्रॉम योर फाइनेंशियल एसेट्स इन दीज NBFC, दैट इज द क्रक्स पॉइंट दैट इज आउट देयर, ठीक। अच्छा, ये मैंने अभी आपको बताया दैट इज NBFCs कैन नॉट एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, है ना, ये मैंने आपको बताया है ना। सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस दैट इज कमिंग आउट बिटवीन द बैंकिंग सेक्टर एज वेल एज NBFCs। क्या कि भैया NBFC आपकी क्या करती हैं, ये आपका डिमांड डिपॉजिट्स नहीं लेती, बैंक आपके डिमांड डिपॉजिट्स लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट थिंग, however debentures and bonds are not demand liabilities, therefore it can be used by NBFCs to raise funds, ठीक है। तो ये तो मैंने ऊपर बताया आपको क्या कि NBFCs yes they deal in these debentures and bonds, ठीक है। क्या है bonds and debentures मैं आपको बताऊंगा तसल्ली से जब ये इसका चैप्टर आएगा, ठीक है, कैपिटल मार्केट्स वगैरह, तब आई विल बी टेलिंग यू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक। अच्छा, then the thing is that not all NBFCs, yes, majority of the NBFCs are regulated by Reserve Bank of India, ठीक है, that is RBI, but not all NBFCs are regulated by it, ठीक है। तो इसमें मैं क्या बोलता हूँ, that is for example the venture capital fund merchant बैंकिंग कंपनीज, ठीक है, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज, दीज आर रेगुलेटेड बाय सेबी, है ना, ठीक। इंश्योरेंस कंपनीज आर रेगुलेटेड बाय इरडा, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि इसमें जरूरी नहीं क्या कि आपकी सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs आर रेगुलेटेड बाय RBI, ठीक, देयर के लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर इन द स्टॉक मार्केट लॉट ऑफ के NBFCs आर वर्किंग, ठीक है। उनका रेगुलेटर कौन होगा, वही होगा जो आपका क्या कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, दैट इज व्हाट, दैट इज योर सेबी एंड ऑल दोस काइंड ऑफ स्टफ्स, ठीक है, ठीक है। तो NBFC का there is no such single regulator, and rather I am saying that there are diverse of the regulators that are regulating NBFCs in a particular of the sector, ठीक है। आज की क्लास के लिए मैं आपको क्या इतना ही करवा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जो अगला टॉपिक मैं लूंगा वो बहुत ज्यादा क्या बड़ा है, तो डिवाइड हो जाता, ठीक। आज व्हाट आई विल बी डूइंग, वी विल गेट डूइंग मोर UPSC के क्वेश्चन, ठीक है। सो NBFCs के ऊपर ये 4-5 पॉइंट आप याद रखना, क्या, इट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, दे डू नॉट टेक डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ देयर एसेट शुड बी फाइनेंशियल एसेट्स एंड द इनकम फ्रॉम दोज ऑफ द एसेट्स शुड कंस्टिट्यूट क्या मोर देन 50% ऑफ योर ग्रॉस इनकम, ठीक है। देयर इज नो सच सिंगल रेगुलेटर दैट इज आउट देयर, ठीक है। RBI भी हो सकता है और बाकी रेगुलेटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, दैट इज इरडा एंड सेबी एज वेल, ठीक। एक बार क्वेश्चन करते हैं UPSC का एक, ठीक, क्या क्वेश्चन है देखना। चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक से सिलेक्टेड बाय, इन द लास्ट टू लास्ट ऑफ द क्लास मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको क्या बताया था, ठीक है, बैंक बोर्ड ब्यूरो के ऊपर, है ना, ये क्वेश्चन मैंने बताया था, दैट इज चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। वो RBI के ऊपर क्वेश्चन आया था शायद, है ना, बैंक बोर्ड ब्यूरो के ऊपर, है ना, इस टाइप से क्वेश्चन था, ठीक। दैट इज बैंक बोर्ड ब्यूरो के ऊपर दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, उस टाइम पे था कि बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो हेड है, ठीक है, दैट विल बी द गवर्नर ऑफ RBI, सो दैट वाज नॉट द केस, ठीक है, तब मैंने आपको बताया था। सो बैंक बोर्ड ब्यूरो के ऊपर ये दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। कब आया है, दिस हैज बीन इन UPSC 2019 में, ठीक है, बहुत जल्दी बैंक बोर्ड ब्यूरो के ऊपर सेकंड क्वेश्चन भी आ गया, है ना। सो द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक इज सिलेक्टेड बाय व्हाट, दैट इज वेरी इजी, दैट इज बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो गिव्स द रिकमेंडेशन एंड देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स इट, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली measure which of one of the following is not the most likely measure the government/RBI takes to stop the slide of the Indian rupee। अच्छा, तो ये क्या बोल रहा है कि अगर आपका रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है, मतलब मान लो क्या $1 वॉज अर्लियर क्या 50 रुपीज, नाउ $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, तो ये क्या हो रहा है, टेक दैट इज इंडियन रुपी इज स्लाइडिंग डाउन, ठीक है।
तो इसको रोकने के लिए आप क्या नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक, नॉट द मोस्ट, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना, इसको अगर बेसिक कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है, तो इसको अगर मुझे इसकी वैल्यू बढ़ानी है, ठीक है, अगर मुझे क्या 70 से दोबारा से इसे 50 की तरफ ले जाना है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसे मोर एक्सपेंसिव कर रहा हूं। आई एम मेकिंग माई इंडियन करेंसी मोर एक्सपेंसिव। बताया था कैसे एक्सपेंसिव, कि अगर आप यहां पर 1 रुपी, ये रुपीज है आपका, अगर आपको यहां पे निकालना है तो 1 रुपीज इज इक्वल टू आता है 1/50 डॉलर, ठीक। यहां पे 1 रुपीज क्या आता है, 1 रुपीज इज इक्वल टू 1/70 डॉलर, ठीक। यहां पे न्यूमरेटर छोटा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो दैट इज अ हायर वैल्यू, ठीक है, रुपीज की, ये क्या है, स्मॉलर वैल्यू, ठीक है। सो इससे पता चलता है क्या, कि जब मेरा करेंसी का वैल्यू एज सच ऐसे न्यूमेरिकली बढ़ता है, तो मतलब करेंसी आपकी घटिया हो रही है, आपकी चीपर क्वालिटी की हो रही है, ठीक है, उसकी कोई वर्थ नहीं रह जा रही, ठीक। अच्छा, तो मतलब अगर मुझे इसकी डिमांड बढ़ानी है, ठीक है, थोड़ा बेसिक कॉमन सेंस लगाना, ठीक है, इफ आई मेजरली हैव टू क्या इंक्रीज इट्स डिमांड, ठीक है, मुझे क्या 70 से दोबारा से 60 पे ले जाना है, 40 पे ले जाना है, ठीक है, वट एवर इज द केस, मुझे इसका क्वांटिटी कम करना पड़ेगा। कोई भी चीज कब एक्सपेंसिव होती है, जब वो छोटी क्वांटिटी में हो, ज्यादा में होगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो इसको मुझे मोर एक्सपेंसिव करना होगा। एक्सपेंसिव कब हो जाएगी ये क्वांटिटी, ठीक है, कोई भी चीज एक्सपेंसिव कब होती है, व्हेन इट इज स्मॉलर इन नंबर, व्हेन इट इज क्या लेसर इन नंबर। अब मुझे इसको लेसर करना है, तो मतलब मुझे लिक्विडिटी इन द मार्केट लेस करनी पड़ेगी। लिक्विडिटी इन द मार्केट आई शुड बी क्या, रिड्यूसिंग, ठीक है। अब इसमें से वो ऑप्शन ढूंढो जिसमें लिक्विडिटी एनहांस हो रही है, तभी वो नॉट द मोस्ट लाइकली होगा, ठीक है। इसमें एक ही ऑप्शन आता है, फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मतलब ये आंसर क्या है, गलत है, मतलब लेकिन नॉट पूछा है तो यही सही हो जाएगा। क्यों, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब यू आर इंक्रीजिंग द लिक्विडिटी, बट हमें क्या करना है, इन ऑर्डर टू मेक अवर क्या करेंसी मोर एक्सपेंसिव, आई हैव टू रिड्यूस द लिक्विडिटी, देन माई करेंसी विल बी क्या एप्रिशिएटिंग, ठीक है। सो दिस इज द इनकरेक्ट बट करेक्ट आंसर है ना, क्योंकि नॉट पूछा है, ठीक है। सो डी इज द आंसर, दैट इज फॉलोइंग इन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक। सो दैट इज फॉर टुडे, ठीक है। रेस्ट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट ऑफ द क्लास। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूं क्या, कि प्लीज 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 डू लाइक शेयर सब्सक्राइब उड़ान आईएएस का चैनल, ठीक है, बिकॉज इट हेल्प्स टू कीप अस मोटिवेटेड, ठीक। एंड येस, इफ यू वांट टू क्या ज्वाइन मी on Telegram, yes you can do that. This is my Telegram group, that is Sammy2908. Please do that, please do that, please do that, ठीक। So rest we'll be doing in the next of the class। और जैसे मैं हमेशा क्लास एंड करता हूँ, कैसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी क्लास देखते रहिए, ब्लश 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 ब्लश, वाई, बिकॉज UPSC is not a game of IQ, it is a game of EQ। चलो बाय बाय बच्चा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।